The situation of dengue in West Bengal is concerning. The number has crossed 30,000, and there has been a lot of efforts by the government that they are claiming there's politics with this. But what the experts are saying, we have with us Dr. Jogiraj Roy, who is an expert in infectious disease. We'll speak to him and try to understand that why is this time the dengue is taken a really toll on everyone. Why the number is probably this time it is 50% higher than the last time. Why the number is so high? Basically number is so high because of less rainfall this year, because when you have huge rainfall and in a huge rainfall, the eggs of the Aedes mosquito wash away usually, and that this time rainfall is not up to the mark. You don't have a water logging. In fact, rare one or two instances of water logging in Kolkata this year. So that is very unusual for our city and the suburb of Calcutta, and that's why the number of mosquitoes bred out from that eggs are much more. So number of vectors more is equal to number of dengue more. Do you think the situation is really concerning now? At this time, this is the peak. Probably we are having the peak. If this peak continues for a duration of 1 month and like that, more than that, then it will be really concerning. But if the number reduces usually it reduces within 15 days, then it will be can be controlled. Beds will be available. But if the number stays high for long duration, then there will be bed crisis. And what is this? What type of dengue is coming more? Dengue, hemorrhagic fever, shock fever, which is the more one which is happening? Commonly, the usual dengue pattern is same, but among the severe patients, dengue shock syndrome is usually what we are seeing previously is same like that. But we are getting lot of organ involvement this time, different organ involvement like neurological involvement, like cardiac involvement. Sudden cardiac death has also happened in some cases. There are features of low oxygen level like ARDS, like COVID in dengue this year. Liver was usually involved in dengue for in past also. This time it is also same, and there are cases of coagulopathy where the patient bleeds not due to low platelet. It is due to coagulation defect due to liver involvement or coagulopathy that has been seen. And we are seeing also some cases of kidney failure. We are seeing cases of pancreatitis. I have seen very less amount in past 10-12 years. This time we have seen already amongst we have a 30 bedded ward where dengue patients are there, but we are seeing around 10 pancreatitis in last 7 days. And what is this, mortality rate generally is low, but this time that too seems to be a little up. Why is it? Due to organ involvement, different organ involvement, and if the organ involvement are not realized early, then that death will happen, because when you realize, there will be nothing we can do at that time. So my first request is to everyone is to test for dengue whenever you have a fever in this area where we are getting dengue. Everybody knows where we live, where we have dengue for last 10 years, 15 years. So this area will be remaining as a pocket of dengue for long time due to the natural process of the disease. So that we can't ignore. So if we have in the monsoon time we have fever in these areas, please check for dengue as early as we can, because the dengue NS1 antigen test is very good for early diagnosis. So even in the day 1 it can detect dengue. So when you get a diagnosis of dengue, you become very serious. Then you can take proper fluids, ORS, and maintain your normal life. So, what next? What is your message for the society? Because every time there is rain, every time we know, but still, as far as from the every level, the effort seems to be less. So, what do you have to say on that? No, the effort is not less. People are trying. Everyone, we have a slogan of checking our households, or at least once in a week,
to look for mosquito or larva and these things. But I think civic bodies must take some serious steps who are not abiding this law, who are not concerned about their garbage inside their home, because this mosquito actually breeds inside the home or in the it is nuisance mosquito we call them. Just small amount of water collection that can give rise to Aedes mosquito. So where we are keeping tubs open, bathtubs open, or collecting water in tires, these are the area where we get dengue mosquito. So if someone is failing to do that and not concerned about it and just doing so casual about it, I think we need to have some restriction, at least some measures to punish them. Because in some areas you can punish, not like beating them up, where we can say that you look, you fellow has not done the right thing that should be done, you all know, and every year we are having same problem. So you go and work with our karma bandhus or the people who are actually cleaning these garbages, so they can clean garbages for 2 days or 3 days and be a responsible citizen with that. Suggestion. And also somebody who is having dengue, what after is diagnosed, what do's and don'ts for them? Do's is just go to medical field, check, have a chat with them and examine by them. After that, whatever the dengue related complication, we test for platelet count and packed cell volume. It has to be checked in regular interval, whatever the physician thinks, and has to be informed that physician that what the level of platelet, what is the level of PCV, and if they think they have to do for much more test, because to look for different organ involvement. And if there is some amount of says, if the person or the physician becomes skeptical about the future of the patient, better to get admitted. We have to keep some low threshold in admission this time, because we are seeing that People are coming late in people admission. are coming late, people are diagnosed late, taking paracetamol or some antibiotics. There is no role of antibiotics in dengue, it is a viral fever, people are taking antibiotics. And as our law is not that strong, that enforcement is not that strong, that anyone can buy antibiotics from anywhere, people are buying this, but it should not be. One has to be very alert, that's the Has to be very alert and be a responsible citizen. If they are not responsible, our civic bodies must make them responsible. Two very vital points raised by Dr. Roy is one, if you're having fever, then just don't wait, go for test, and if you're having dengue, then regular interval or constantly stay in touch with your physician and do whatever is needful. And second, there should be punishment by the civic bodies of people who are not following the norms, because these are the norms, these are the problems which is related to dengue and which is giving rise to the numbers. So just be alert, and if you have fever, just go and test whether you have dengue or not. Dengue is on rise in Bengal. The story of people who are dying of dengue is really pathetic. Today we have come to one house where she just became mother. Within 6 days to it, she died out of dengue. And there also her family, her husband, is alleging the role of hospitals in dealing with her case. A mother who just gave birth to a baby died because of dengue, and also, according to the husband, the negligence of
3 hospitals. We'll talk to the husband. Rakesh is with us, who is also very young, 33 years old, Payal Nondi, whose photo is just behind her husband. You can see their wedding photo. And the bereaved husband is here with us. We'd like to ask him what actually happened. मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ये केस को देखा जा रहा है एज अ डेंगू, लेकिन ये सिर्फ डेंगू का केस नहीं है. डेंगू उसके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस, ये टोटल मतलब एकदम 50-50 था. मैं मेरे वाइफ का 18 साल पुराना दोस्त हूँ, एकदम एक साथ ही हम लोग बड़े हुए और शादी की 2019 को. इस साल के पहले दिक में जनवरी-फरवरी में हमारा चाइल्ड आया, मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई. तो मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ पे दिखाता था, डॉक्टर कौशिक दत्तो. तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे वाइफ का प्रेगनेंसी जब आया तो मेरा वाइफ उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये डॉक्टर अच्छा है. तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर कहाँ पे करें, तो बोले वो मातृभवन, रामकृष्ण शारदा मिशन मातृभवन, उन हॉस्पिटल का नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सुन के लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे केयर बहुत अच्छा मिलेगा. कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम, मतलब रामकृष्ण शारदा देवी के नाम पे ये लोग आदमी के साथ ऐसा करता है. मैं आपको पूरा स्टोरी बोल रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने काट किया मेरे वाइफ का. 8 महीने से 9 महीने से मैं वहाँ पे ही दिखा रहा हूँ. जो जो टेस्ट वो बोले, जब जब बोले, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, सब मैंने किया. तो जब 8 मंथ मेरे वाइफ का हुआ तो मेरे वाइफ का SGPT SGOT लीवर में एक टेस्ट होता है, तो वो हाई हो गया था. तो डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर बोले कि ये एकदम नॉर्मल है, सभी को होता है, लेकिन आप जो नॉर्मल प्रोसेस में जाना चाहते थे, मैं नॉर्मल प्रोसेस में जाना चाहता था. मेरे वाइफ नॉर्मल करना, क्योंकि वो डांसर है, वो स्टिचिंग नहीं मतलब करना चाहती थी और स्कूल टीचर भी है, ताकि जल्दी वो ठीक हो जाए तो नॉर्मल करना चाहती थी वो. तो उसके बाद वो बोले कि नॉर्मल नहीं होगा. तो मेरा वाइफ से मैंने बात किया, मैंने वाइफ बोली कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी. लास्ट महीने के 26 तारीख को मेरा वाइफ का 37 वीक्स कंप्लीट हुआ. 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर बोला कि आज ही हम कर देंगे. मैं 26 तारीख को वाइफ को ले गया था वहाँ पे, तो मैं तैयार नहीं था कि आज होगा. मैं 2 दिन रुक के देख के टेस्ट करके करेंगे. तो मैं 10 बजे हॉस्पिटल पहुँच गया था. तो मेरे वाइफ अंदर थी. 12 बजे मुझे ऊपर बुलाया. मैं देख रहा हूँ कि मेरे वाइफ का बाल बंधा हुआ है, जैसे OT से पहले होता है. तो मैं बोला ये क्या है, हम तो आपको तो हमें कुछ नहीं बोले पहले. तो डॉक्टर की जो वाइफ है, डॉक्टर कौशिक दत्तो की वाइफ, उन्होंने मेरे वाइफ का OT किया था. तो उन्होंने बोले कि मैं अभी रिस्क नहीं लूँगी, मेरा अभी कर दूँगी. तो मैं वाइफ से पूछा कि आर यू रेडी, मेंटली रेडी. तो वो बोली कि हाँ मैं मेंटली रेडी हूँ, तुम घर पे बोल दो, सबको बोल दो आ जाने के लिए. मैं दोस्त वो घर पे सब बोल दिया, सब आ गए. 3:45 से 4 बजे मेरे लड़का हुआ. 26 तारीख, 26, 27, 28 मंगलवार तक, सोमवार तक सब ठीक था. रेगुलर मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ. 7-8 बजे हर दिन वाइफ को देखने के बाद डॉक्टर के साथ बात करना होता है. बच्चा का डॉक्टर, माँ का डॉक्टर, दोनों बोले आपका एकदम ओके है, गुरुवार को या शुक्रवार को हम आपको छोड़ देंगे. तो सब रेगुलर चल रहा है. मंगलवार जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैं डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डिटेल नहीं बोलो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे नेग्लिजेंसी हुआ. मंगलवार मैं जब देखने गया, मेरे वाइफ को केबिन में मैंने रखा था, तो उनके साथ भी एक औरत थी, उनका लड़की हुई थी. तो वो बोले कि सोमवार रात को मेरे आपके वाइफ का बुखार आया था बहुत ज़ोर से. तो मैं वहाँ पे डॉक्टर को खोजने गया, डॉक्टर नहीं मिला उस टाइम पे. सिस्टर से पूछा क्या हुआ, बोलो प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा होता है, आप डरिए मत, आपको वाइफ एकदम ठीक है. मंगलवार चला गया. 29 तारीख, मैं 30 तारीख को आता हूँ, कहानी वहाँ से शुरू होता है. 30 तारीख सुबह को मुझे फ़ोन आया, सॉरी बुधवार को, पहले मैं आपको बता दूँ, बुधवार 29 तारीख था. बुधवार मैं जब वहाँ से उनसे मीटिंग करने गया, 4 से 6 बजे तक मीट करने देते थे शाम को, तो मेरे सामने ही वो बच्चे को ऐसे अपने गोद में ली हुई थी. बात कर रहे थे, हम तो दोस्त जैसे है, मतलब चलो घर चलते हैं, आज ही चलते हैं, ऐसा बात कर रहे हैं. हट से मतलब एकदम से उनको शिवरिंग होने लगा, कांपने लगी वो. मैंने क्या हुआ, बोले बच्चे को थोड़ा पकड़ो, क्रीम में रखो. तो इतना छोटा बच्चे को मैं कैसे पकड़ूँ, मैं आया को बोला, आया बच्चे को लेके क्रीम में रखा. तो
मैंने पूछा क्या हुआ नर्स को, नर्स आके कंबल वम्बल सब चप मुझको दे रही है। वो ठीक हो गई, मतलब बुखार था लेकिन वो शिवरिंग बंद हो गई। बोले क्या हुआ ये? बोले ऐसा होता है, लूज मोशन भी हो रहा था। बोले ऐसा होता है, आप डरिए मत, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप डरिए मत। तो थोड़ा सा तो मेरे दिमाग में था। मैं उस दिन घर नहीं गया, मैं उस दिन एकदम मतलब दूसरे दिन मैं घर जाता हूँ फिर आके डॉक्टर से बात करता हूँ। उस दिन मैं रुक गया। 7:30 8 बजे डॉक्टर से बात हुआ, बोले कि एकदम ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं डॉक्टर ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, आप घर चले जाइए। मैं घर चले गया। उस दिन रात 1-1:30 बजे तक सब दोस्त लोग घर पे थे। मैं सबको बोल रहा था कि भाई ऐसा हुआ है, रात को सब जागना, बोला सकते हैं। रात को कोई नहीं बोला है। 8:30-9 बजे हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया, आप जल्दी आइए, इमरजेंसी केस है। तो मैं उठ के ही, मैं कुछ खाया नहीं, मैं चला गया हॉस्पिटल। तो जाने के जब गया तो देख रहे हैं वहाँ पर जो माताजी है और डॉक्टर एक सर्टिफिकेट में कुछ लिख रहे हैं। तो मैंने पहले नहीं समझा कुछ, बाद में देख रहा हूँ कि पायल नंदी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो मैं तो एकदम से मतलब सरप्राइज हो गया, ये क्या हुआ? मैंने माताजी को बोला ये क्या है? अभी तो वो तो बुखार थी उनको। बोले नहीं, यहाँ पे कोई डेंगू का फैसिलिटी नहीं है। मैं बोला डेंगू का फैसिलिटी नहीं है मतलब? बोला आपको पेशेंट को डेंगू हुआ है। मैं तो एकदम आसमान से गिरा। मैं डेंगू तो आपको, मैं जब मेरे पेशेंट को यहाँ पे लाया था तो वो तो एकदम ठीक थी। तो अभी जब यहाँ पे डेंगू हुआ है तो आपका तो फैसिलिटी है। वो लोग मेरे साथ, मैं क्या बोलूँ, एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब एक टेररिस्ट की तरह जैसे बिहेव करते हैं हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ पे भी वैसे बिहेव कर रहे हैं। अब आपके वाइफ को यहाँ से जल्दी लेके जाइए, हम उनको नहीं रख सकते, हम उसको दूसरी जगह रख देंगे जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ले जाइए। मैं बोला आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉन्टीन्यूअस अपने गायनोकोलॉजिस्ट को फ़ोन कर रहा हूँ, कौशिक दत्त को। इतना क्रूएल है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं बोला मुझे बात करने दीजिए। बोले कौशिक दत्त तो अभी यहाँ पे नहीं है। तो 1 घंटा मुझे कॉन्टीन्यूअस प्रेशर किया वहाँ पे, और मुझसे सब साइन करवा रहे हैं। मैं बोला मैं यहाँ पे साइन नहीं करूँगा, आप तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपना कंसेंट से ले जा रहे हैं, मैं तो अपना कंसेंट से नहीं ले जा रहा हूँ, आप लोग फोर्स कर रहे हैं। बोला अगर नहीं गए तो आपको बच्चे और माँ को हम दूसरे कमरे में रख देंगे, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। मैं डर गया, मुझे तो तब पता नहीं था मेरे वाइफ एक्सपायर कर जाएगी। मेरा स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है लेकिन पूरा सुनिएगा। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूअस फोर्सिंग मुझे कर रहे हैं वो लोग। मैं अपने दोस्तों को बुलाया, अपने बच्चे को सी ऑफ किया, आईटीयू में वहाँ पे रख दिया बच्चे को, क्योंकि मैं उनको बोला कि मेरे बच्चे को आईटीयू में रख दीजिए। बोले हाँ हम रख देंगे, आप तुरंत निकलिए यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं अपने वाइफ भी देखी, ये उनको भी शौक लगा, तो वो भी मुझे कुछ नहीं बोले ठीक है दिमाग गर्म मत करो, चलो हम अच्छे हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ से पास में आरएस भी है, वहाँ पे गए थे मेरा दोस्त लोग, नहीं मिला। रास्ते में बहुत हॉस्पिटल मिला था, किसी में नहीं मिला। आयरिश में मुझे इमरजेंसी में भर्ती करने को मिला, वो 30 तारीख शाम को। तो मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ, डॉक्टर ये डॉक्टर अनिर्बान दास के अंडर, डॉक्टर ये सीजर पेशेंट है, इनको थोड़ा ज़्यादा केयर दीजिए प्लीज़। मैं हाथ पकड़ के ऐसे बोल रहा हूँ। बोले नहीं हम केयर देंगे उनको। तो उस रात मैं घर पे चला आया, नींद तो नहीं आएगी ऐसा हुआ। सब 10 लोग सब हम एक साथ में ही जाग रहे हैं सारा रात। सुबह होते ही मैं तुम लोग को, मैं आइरिस जाता हूँ। मैं आइरिस गया, मेरे वाइफ से बात की, देख रहा हूँ कि वो डिटोरिएट कर रही है, उनका लूज मोशन बढ़ गया है, मतलब तबीयत ख़राब हो रहा है। और उनके पास एक बोतल रखा है, बोतल में पानी नहीं है। मैं अभी भी मुझे याद है 523 नंबर सीट था उनका, 523 नंबर बोतल में लिखा था, पानी नहीं दे रहा है। मेरा दिमाग गर्म हुआ। मैं पूछा कि तुमको पानी नहीं दिया? बोले हम कब से मांग रहे हैं, हमको नहीं दे रहा है पानी। मेरा दिमाग तुरंत गर्म हो गया। मैं बाहर गया, सिस्टर को खोज रहा हूँ, डॉक्टर को खोज रहा हूँ। 2 घंटे बाद मुझे डॉक्टर मिले। डॉक्टर बोल रहे कि अभी ठीक है, लेकिन आपके पास तो पैसा है ना, क्योंकि ये तो अच्छा नर्सिंग होम है, पैसा लगेगा। पैसा का बात छोड़िए, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है, आप मेरे पानी नहीं मिल रहा है मेरे वाइफ को। तो वो बोल रहे कि हम बोल दे रहे हैं पानी के लिए, आप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अपने पास रखिए। मतलब अभी कुछ नहीं, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, मेरे वाइफ को ठीक कीजिए। तो मैं उसी से टाइम नर्स जो थी बोल रहे कि आपको अगर पसंद नहीं हो रहा है आप यहाँ से अपने पेशेंट को ले जाइए, मुझे ऐसे बोल रहा है बोलो। तो डॉक्टर वो कैसे बात कर रहा है? बोले ठीक है, आपको अगर, डॉक्टर भी बोल रहा है आपको पसंद नहीं है तो आप लेके चले जाइए, यहाँ पे ऐसे जो ट्रीटमेंट देख रहा है ऐसा ही होगा। तो मैं तो नहीं जानता कि मेरी वाइफ मतलब मर जाएगी, मैं तो तभी मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैं बोला कि इतने नेग्लिजेंसी में तो उनको नहीं रख सकते हम। तो बोले डॉक्टर वो आप मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिख दीजिए, हम लेके जा रहे हैं। तो मेरे वाइफ 16 घंटे भी भर्ती नहीं थी वहाँ पे, 16,000 रुपये वो लोग बिल किए।
और जो 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक मुझे वहाँ पे रख दिया वो लोगों ने, मतलब डिस्चार्ज कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, मेरा पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वहाँ पे भेज रहे हैं। तो अब तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दिमाग गर्म करने से कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा वाइफ डिटोरिएट कर रही है। तो मैं जैसे तैसे पैसा दे के, मैं पैसे के लिए तब लिस्ट बहुत था कि मैं देख रहा हूँ मेरा वाइफ मेरे सामने डिटोरिएट कर रही है। उसके बाद मैं अपने वाइफ को लिया, मेरे दोस्त लोगों को बोला कि भाई कुछ भी कर, पीएलएस में एक सीट बुक करके, पीएलएस यहाँ का बड़ा नर्सिंग होम, मुझे ऐसा लगता था, कुछ भी करके कर। तो दोस्त लोग वहाँ पे गए, मतलब पैर पड़ने सिर्फ बाकी रहा था, तो बोले कि ठीक है इमरजेंसी में लेके आओ पेशेंट को। मैं जैसे तैसे गाड़ी में लेके गया, मेरे वाइफ को वहाँ पे भर्ती किया। तब शाम हो चुका, 6:30-7 में, टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन शाम तक हो चुका था। तो वाइफ को भर्ती करने के बाद मैं मेडिकल इंश्योरेंस ऐसा वो सब दे रहा हूँ, पैसा वैसा सब दे रहा हूँ। 2 घंटा वहाँ पे निकल गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर राजा बासु मुझको बुलाए, डॉक्टर वो क्या हाल है? बोले कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ प्रेशर लो है, मैं उनको आईसीयू में भर्ती कर रहा हूँ आज रात के लिए, कल उनको बेड में दे दूँगा। मतलब बहुत अच्छा, आईसीयू में अब जा रही है तो अभी ट्रीटमेंट उनको अच्छा मिलेगा। तो 9 साढ़े 9 बजे एक ही स्लिफ्ट में मैं, मेरा दोस्त लोग और वाइफ, स्ट्रेचर में डॉक्टर सब ऊपर गए, आईसीयू में उनको दिया। 8116 उनका सीट नंबर था। उनको बिठाया, ड्रेस पेस चेंज हुआ, खाना दिया, तब हम सब वहीं पे ही हैं। तो एकदम बात कर रही है, एकदम लड़की एकदम ठीक है, तबीयत थोड़ा ख़राब है लेकिन बात एकदम कर रही है। डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर वो ये सीजर पेशेंट है, प्लीज़ काइंडली आप थोड़ा इनको देखिए, ये डेंगू हो गया है, ये तो बहुत, मेरा बच्चा वहाँ पे भर्ती है। बोले आप कोई चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, यहाँ पे बहुत पेशेंट है, आप घर चले जाइए, आप सुबह को 9:30 बजे आइए। तो 31 तारीख रात को बात कर रहा हूँ मैं ये। फिर मैं घर चला गया 9:30 बजे, दोस्त लोग भी घर चले गए 9:30 बजे। 2 लोग को ही देखने देंगे, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे बाइक में बैठ के 1 तारीख को मैं वहाँ पे गया। 9:30 बजे पहले मैं माँ को बोला तुम तो इतनी देर से नहीं देखी, तुम जाके पहले देख के आओ। तो माँ गई अंदर, 15-20 मिनट के बाद माँ बाहर निकली, बोली कि आप थोड़ा अंदर जाइए, मैं वाइफ मतलब उसका नाम पायल है, पायल का थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है और वो मैं देख के समझ रहा हूँ वो डिटोरेट कर रही है। तो मैं अंदर गया, मैं बोला आपको क्या, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बोले मैं ओवरनाइट 2 बार वॉमिट कर चुकी हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और खाने का मन नहीं कर रहा है, और मुझे ये मतलब बेड के ऊपर ही टॉयलेट और लैट्रिन और मतलब ये टॉयलेट करने के लिए दिया है। तो मैं बोला कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऐसे मॉनिटर में ऐसे देख रहा है। मैं बोला डॉक्टर बाबू कुछ साउंड नहीं, डॉक्टर बाबू सुनिए ना। मैंने मेरा वाइफ और उनका सीट नंबर भी चेंज कर दिया, 8118, ऐसे पेशेंट को फिर शिफ्ट किया उन लोगों ने। तो मैं तो तभी ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब उनको देखिए, सीजर पेशेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा वहाँ भर्ती है, इनको थोड़ा केयर दीजिए, आईसीयू तो केयर करने के लिए। बोले आप ज़्यादा बात मत कीजिए, मतलब ऐसा बोल रहा आप टाइम हो गया आप चले जाइए। मतलब वो तो टॉयलेट नहीं कर पा रही है, बोले मैं हम उनको पोर्टेबल टॉयलेट दे देंगे, आप चले जाइए, टाइम हो गया। तो मैं अपने वाइफ को हाथ दिखाया और बोला मैं 4 बजे आ रहा हूँ। तो यही मेरा लास्ट वर्ड होगा उनके साथ, ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकला, मेरे बेटे के पास गया, मैं बेटे को देखा, बेटा ठीक है, खाना वाना सब कर रहा है। तो इतना क्रूएल हॉस्पिटल है वो, मेरे बेटे को किसी ने माँ का दूध नहीं दिया। मैं कारण पूछा, वो बोल रहा है कि इसके माँ का डेंगू हुआ है, वो दूध पीने से दूसरा भी कि डेंगू हो जाएगा। ऐसा कभी होता है? ऐसा होता है कभी? बोलिए तो मेरे बच्चे को नया नहीं खिला रहे वो लोग, फिर भी ठीक था मेरा बच्चा। बच्चे को देखा, मेरे दिल थोड़ा हल्का हुआ। मैं दोस्त लोगों को फ़ोन करके बोला, वो तो मेरे साथ 7-8 दिन तक घूम रहा है, बोला तुम आज ऑफिस जाओ, आज कुछ काम नहीं होगा, सब ठीक है, मैं देख रहा हूँ सब ठीक है। मैं बच्चे को देख के नीचे आया, मेरे बाइक को स्टैंड से निकाला, मुझे मेरा 2 फ़ोन है, एक फ़ोन में मुझे फ़ोन आया एक नंबर से, वो पकड़ते पकड़ते बाइक फिर स्टैंड करते करते वो मेरा फ़ोन काट गया। दूसरे फ़ोन में वही नंबर से फ़ोन आया, मैं फ़ोन को उठाया, बोल रहा है कि आपका वाइफ डिटोरिएट कर रही है, मैं पीएलएस हॉस्पिटल आईसीयू से बोल रहा हूँ, आप मुझे कंसेंट दीजिए, आपके हाथ में जो चैनल किया हुआ है वो चैनल से
मैं वो मेडिसिन नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब पैर में चैनल करना पड़ेगा। तो मैं बोला डॉक्टर को मैं ऐसे बाई द फोन ओवर द फोन आपको कैसे कंसेंट दे दूँ, मैं तो कुछ देखा ही नहीं। बोले नहीं नहीं आपको कंसेंट देना पड़ेगा, आपको वाइफ डिटोरेट करेगा, कुछ भी करके मेरे वाइफ को बचाइए, मेरा बच्चा यहाँ पे आईटीयू में भर्ती है, प्लीज़ डॉक्टर वो कुछ भी करके बचाइए, जितना पैसा लगे जो लगे आप बचाइए। बोले ठीक है आप आइए। तो मैं मेरा दिमाग पूरा एकदम सुन पड़ गया, मैं पूरा एकदम खड़ा हो गया ऐसे। मैं दोस्त लोगों को दोबारा फ़ोन किया कि कोई मत जा, सब पियालेस हॉस्पिटल में पहुंच, मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। 20 मिनट का रास्ता है वहाँ से पियालेस तक, मेरा 1 घंटा 20 मिनट लगा मुझे, क्योंकि मैं मेरा चलने का गाड़ी चलाने का मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैं 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचा, एग्जैक्ट टाइम गलत हो सकता है लेकिन 1:30 से 2 बजे के बीच में पहुँचा। मैं सिक्योरिटी को बोल रहा हूँ मुझे फ़ोन किया है, मुझे मेरे पेशेंट को देखने दीजिए। 2 घंटे तक मुझे कोई नहीं देखने दिया पेशेंट को। मैं पूछ रहा हूँ वो बात कर रही है, वो खड़ी है, वो बैठी है, बोले हाँ सब हो रहा है। 3:30 पौने 4 बजे एक आदमी आया, एक डॉक्टर आया, बोल रहे कि आपका वाइफ कंटिन्यूस डिटोरिएट कर रही है, आपको अभी उनको वेंटिलेशन में देना पड़ सकता है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? तब मैं पूरा टूट चुका हूँ। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अभी तो मैं बात करके गया। बोले नहीं नहीं आप मन एकदम सख्त कीजिए। तो फिर अंदर चला गया वो। 10 मिनट के बाद आके वो बोला आपको वाइफ को वेंटिलेशन में दे दिया है। अभी तो मुझे घर पे फ़ोन करना ही होगा। अभी तक मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पापा मेरे माँ सब मतलब कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं। मेरे वाइफ अकेली लड़की है मेरे सास ससुर की, तो वो तो मर जाएंगे ये सुन के। अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब मैं फ़ोन किया उन लोगों को, वो सब आए। उसके बाद मुझे अंदर लेके गए। अंदर जाने के बाद मैं देख रहा हूँ, आप देखिए मेरी वाइफ, शी इज़ प्रीटी लेडी, वो डांस करती है, स्कूल में पढ़ाती है। मैं देख रहा हूँ मेरा वाइफ का बॉडी दुगना फूल गया है, मुंह में 3-3 नल, मतलब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, हाथ ऐसे, पाँव ऐसे, और ऊपर में देख रही है वो देख रही है। मैं पूछा डॉक्टर वो क्या क्या किया आप लोगों ने? बोले नहीं वो उनको डेंगू का शौक हुआ है। बोले डेंगू का शौक हुआ है कि आप लोग नेग्लिजेंसी करके मार दिए इनको? मैं तो बोल रहा हूँ ये सीजर पेशेंट है, ये सीजर पेशेंट है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? बोले नहीं कैपिलरी लीकेज हो रहा है उनका। मैं कैपिलरी लीकेज हो रहा है तो आप कल रात को सीटी स्कैन क्यों नहीं किए आप लोग? ये क्या मैं आपको बोलूँ? आप तो डॉक्टर किस लिए है आप? बोले आप बाहर जाइए, ऐसा मुझे बोल रहा है। मैं बोले आप मार दिए मेरी बीबी को। तो मैं सामने जाने का मेरा मतलब मुझ में करेज नहीं है मैं सामने जाऊँ उनके। मैं दूर से उनको ऐसे आखिरी बार बाई किया, मतलब मैं समझ गया हूँ मैं ये पेशेंट को घर नहीं ले जा सकता। उसके बाद डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहा है, उसके बाद खून मांग रहा है, उसके बाद मांग रहा है प्लेटलेट। मेरा दोस्त ब्लड बैंक पे काम करता है, वो अगर रात को बोलते कितना बैग लगता सब दे देता, सब उनको दे देता। अभी मतलब एकदम सब खत्म होने के बाद मुझे सब मांग रहा है और मुझे ये बोल रहा है कि ये हो रहा है हार्ट बीट। मैं तो समझ गया ये इनको अभी कोई नहीं बचा सकता, इनको ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। 1 तारीख रात को फिर मतलब वहाँ पे तो सब मेरा माँ, अभी तो सबको साइकियाट्रिस्ट दिखाना पड़ेगा, ऐसा हुआ है घर पे। लड़का मेरा ससुराल में है इसलिए वो देख देख के वो लोग थोड़ा ठीक है। मेरे माँ बाबा का तबीयत, मेरे सासू का तबीयत एकदम खराब है। तो उसके बाद उनका ड्रामा शुरू हुआ, डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहा है। 2 तारीख को फिर पौने 4 बजे वो लोगों ने डिक्लेयर किया कि आपकी वाइफ अभी जिंदा नहीं है। मैं तो जानता, मैं तो मेंटली रेडी हो चुका था क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब नाटक हो रहा है। आप हाई कोर्ट में गए जा रहे हैं? मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। मैं वकील से भी बात हुआ है। तीनों हॉस्पिटल और तीनों डॉक्टर के नाम पे मुझे लाइसेंस कैंसिल चाहिए इन लोगों का। मैं ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल पीएम दोनों से आपके चैनल के थ्रू ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस मैटर को देखिए। मैं ये डेंगू बोल के सिर्फ ये डेंगू का केस नहीं है, ये मेडिकल नेग्लिजेंसी करके लोगों को मार रहे हैं। हमारे जैसा अगर एडुकेटेड लोग इससे पीछे हो जाए ये कंप्लेन करने से, तो यहाँ पे तो मतलब पैसा भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया बिल किया उन लोगों ने। पैसा तो मैं सब दिया, सब मेरा रेडी है। आप मेरे वाइफ को तो बचाइए, आपको क्या लगे ये तो बोलिए।
So the basic question is definitely the entire story says that the condition of dengue is obviously concerning. This lady, she got in the dengue from a hospital, and then his allegation is against 3 hospitals. He has gone to the court. Whether he'll get justice or not, that is to be seen. But the story is really very, very pathetic when a new mom, she just become a mother, and then she had to give up her life. This is Komalika Sengupta with Anshuman Rai reporting for CNN News 18 from Kolkata.